नमस्ते। आप सभी का हीलिंग एवं इंडिया के आज के मीटिंग में स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एवं इंडिया मीटिंग। आज मीटिंग सेफ्टी प्रिकॉशन हमें जो जो लेना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एलएस एमडी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फटाफट मैं मीनिंग इंडिया का प्रेजेंटेशन के पहले 5-10 पेज फटाफट कंप्लीट कर। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंडिया से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या दिए गए ईमेल आईडी पे अपना ईमेल प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। All this information is provided only for educational and information purpose. Do not consider all these advice or comments or the presentation. We are not medical professionals. एमएनडी का मतलब है मोटर न्यूरॉन डिजीज वाली। एमएनडी का मतलब है मैं नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस एंड मेमोरीज नेवर डाई। तो मैं एमएनडी से डरना नहीं है, एमएनडी से डरना है। एमएनडी को हटा के हमें जीतना है। Improving and enhancing the quality of life of health and health patient as well as caregivers. Researching on treatment and solution. Researching on alternative therapies. Offering cost-effective COVID-friendly solution, inviting guest speakers and specialists, liaising with the government authorities, taking an alternative therapy appearance.
तो आज तो टुडे विल हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर एलएस एज वेल एज एमडी के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस जो लोग फेस कर रहे हैं और मैं हम चैलेंज को कैसे मैनेज कर पाएंगे। हाउ टू मैनेज challenges in patient care। आई थिंक उसका भी प्रेजेंटेशन चल रहा है ऑनलाइन, बोलिए। मैं बाद में कॉल करता हूँ 1 घंटे के बाद। This presentation discusses the essential safety precautions for individuals with ALS। हमारी मीटिंग चल रही है, बात कर लें। With ALS focusing on fall prevention, respiratory safety and nutritional condition। में देखा गया कि हमें गिरने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जब हम चलते हैं तब हम हो सके तो गिर सकते, इसलिए हमें ध्यान में रखना है हम गिरे नहीं। में घरों में हमें मॉडिफिकेशन करवाना है, कभी हमारे पैरों के आसपास कोई ऐसी अड़चन नहीं आनी चाहिए। So make appropriate changes in the environmental home environment can significantly reduce the risk of falls for ALS MD patients. This includes removing tripping hazards such as rugs and obstacles and ensuring ample lighting throughout the home. Handrails installation. Installing handrails in critical areas such as stairways, bathrooms, and hallway supports stability and as the patient move around safely, reducing the likelihood of falls. Use of walking aids. Encouraging the use of mobility aids like walkers or canes enhance stability for ALS. कैन आप लोग वॉकर जो आगे व्हील होता है वो वाले वॉकर भी यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखना है वॉकर का में ब्रेक होनी चाहिए और हमें कंट्रोल करना चाहिए वॉकर का। It is also important to consider the use of wheelchair for those with advanced mobility impairment।
respiratory monitoring respiratory function concept में ये भी ध्यान रखना है, हम सबके पास एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ऑक्सीमीटर क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड में हमारे बॉडी में SpO2 लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड पे कितना है, इसके बारे में हमें बताता। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Using devices such as pulse oximeters and peak flow meters helps in tracking oxygen levels and lung capacity, which are vital for timely intervention. आपने देखा होगा मेरे ऑक्सीमीटर में पहले मेरा 92 के आसपास रहता था, भी मेरा ऑक्सीमीटर पे 95, 96, 97 और कभी कभार 98 पे जाता। So you have to make sure that if your SpO2 level is low, then please make sure that you do all these breathing exercise, improve your lung capacity. अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, आपको आपका SpO2 लेवल 90 से नीचे जा रहा है, then make sure that you even use non-invasive ventilation. Please contact a medical professional. A neurologist as well as a pulmonologist can help you with that. और ध्यान में रखना है, अगर हो सके तो मैं BiPAP मशीन लेना है। BiPAP is very useful. BiPAP मशीन बहुत यूजफुल होता है। पूरे भारत में सब जगह पे BiPAP मशीन हमें भाड़े पे भी मिलता है। You can take a BiPAP machine on rent, so it will be easy for you. Many patients benefit from non-invasive ventilation methods like BiPAP or CPAP. But BiPAP is very important, which helps maintain adequate breathing and oxygenation levels, particularly as the disease progresses. नहीं था, नहीं था बोल। બે મિનિટ થઈ બારે ઘડી જોઈ લે ઉપાડી લે પછી પાછી તમને મોબાઈલ બોલાવી मैं ઉપાડી લે પછી ની ઘડી એટલી નહીં બોલી એની ખાલી કોણ છે બ્રેક ले लो કે દો પાછું એ પાછો મારો ફોન લીધો મૂકી દે કેટલું ચાર્જ થયું થોડું બને બ્રેક लो I'll be back in 5 minutes. तब तक मैं एक वीडियो ऐड करता हूँ, आप वीडियो देखी दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। સ્ક્રીન કરી દઉં હું છે
तो करीबन or amyotrophic lateral sclerosis can bring. It's a complex disease that affects the nerve cells. Neuros- living better, living better with ALS essential safety tips. As a neurosurgeon, I've seen firsthand the challenges that ALS or amyotrophic lateral sclerosis can bring. It's a complex disease that affects the nerve cells controlling voluntary muscle movement. This can lead to difficulties with everything from walking and talking to breathing and swallowing. But even in the face of these challenges, there are ways to maintain a good quality of life and prioritize safety. In this video, we'll explore practical safety tips for those living with ALS, empowering you and your loved ones to navigate this journey with greater confidence and resilience. Preventing falls, staying a step ahead. Falls are a common concern for people living with ALS as muscle weakness progresses. Let's talk about creating a safer home environment. Simple modifications can make a world of difference. Installing handrails
भी जो बैलेंस प्रेजेंटेशन है वो मैं रन कर देता हूँ, बाद में आप सभी का क्वेरीज और क्वेश्चन लेंगे। न्यूट्रिशन सेफ्टी, हमें डाइटरी एडजस्टमेंट करने हैं। हमें we have to make sure that you eat non-anti-inflammatory foods, foods which have a high amount of antioxidants, foods which will reduce your oxidative stress, and easy to swallow food. Adapting the diet for ALS patients may involve recommending a softer, easier to swallow food and thicker liquids. भी जैसे कुछ लोगों को पतला पानी पीने से खटका लगता है, पानी निकल नहीं पाते, तो मेक श्योर वो थिक लिक्विड बना के आप पिलाएंगे। These changes help minimize the risk of choking or respiration. हमारी भाषा में बोलते हैं हमें खटका लगता है। Ensuring that patient receive adequate nutrition without compromising safety. Avoiding distraction. ये बात मैं पहले से कहता आया हूँ कि मैंने खुद सफर किया। मेक श्योर दैट जब आप खाना खाते हो तब आप मोबाइल नहीं यूज करो, कि आपका ध्यान खाने पे ही होना चाहिए। फोकस है शुड ओनली बी च्यूइंग में, खाना चबाने में और खाना को निगल में। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं और जाएगा तो हो सकता है आपको खटका लगे, आपको चोकिंग होने की संभावना बढ़ जाती। तो मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ काम एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट during meals, and it is very, very essential. This approach helps the patient focus on swallowing, reducing the chances of choking, minimizing noise and interruption, and significantly improve meal time safety. इसके अलावा आपको पता होगा हमारे बाथरूम में बहुत साबुन गिरता है तो बाथरूम का फ्लोर चिकना हो जाता, तो मेक श्योर आप ध्यान में रखिए कि आप एंटी स्लिपरी मैट यूज करें। बाथरूम को जितना सूखा रखेंगे उतना आपको फायदा है। इसमें क्या होता है, हमारे हाथों पैरों की ग्रिप भी चली जा सकती है। हमें ध्यान में रखना है कि हम गिरे नहीं, इसके लिए आपको रेल लगाना है। वो सब सेफ्टी इक्विपमेंट का पहले ध्यान रखना है। the concept, ensuring that patients sit up upright while eating or drinking is vital for safety. Swallowing a proper position aids in effective transfer of food from the mouth to the stomach through the food pipe and not through the windpipe, lowering the risk of aspiration. Augmentative devices. If speech becomes difficult, implementing augmentative communication devices can facilitate better expression. Options include tablets with specialized communication apps, eye gaze technology, and voice synthesizers tailored to the patient needs. Non-verbal communication, the concept. Encouraging non-verbal methods of communication such as gesture, facial expression, and writing help maintain interaction with patients. These techniques can mitigate frustration
and ensure that the patient needs are met effectively. Prepare for all the changes. Proactive planning for communication changes is essential as ALS or MD progresses. Developing strategies such as visual aids or a communication board can empower patient and reduce anxiety, ensuring the interaction. Regular position changes the concern. For a patient with limited mobility, regular repositioning is crucial to prevent pressure also. आपको भी पता होगा अगर हम एक ही तरह बैठे होते हैं तो हमें वो changing the patient position every 1 to 2 hours can help minimize prolonged pressure on specific body parts. अगर आप एक ही जगह एक ही तरीके से सोते रहते हो तो आपको बैड सोर्स होने की संभावना है। बैड सोर्स क्या होता है, हमारे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन दब जाता है, हमें बैड सोर्स होने की संभावना है। तो बैड सोर्स ने बहुत ध्यान में रखना है। क्वेश्चन, अभी जैसे मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूं तो मैंने एक स्क्वायर गादी व्हीलचेयर पे रखी फॉर क्वेश्चनिंग using specially designed cushions and provide added comfort and support, reducing the risk of pressure. So these cushions distribute weight more evenly, minimizing pressure points on the skin. Skin monitoring. Regular skin assessment help detect early signs of pressure zones or skin irritation. Caregivers should regularly check high-risk area, ensuring appropriate interventions are made to maintain skin integrity. Conclusion. So basically, implementing a safety precaution in the care of ALS or MND patients and significantly improve their quality of life. Fall prevention most important. Respiratory safety that most important. Nutritional support like anti-inflammatory food, diet, anti-inflammatory juices, fruits, anti-inflammatory, antioxidant food, and herbs, spices, and effective communication strategies are crucial for managing the challenges associated with the disease. अगर आपका पेशेंट बोल नहीं पाता है तो आप टोबी आई ट्रैकर एक डिवाइस आता है वो आप यूज कर सकते। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। भी आप में से किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है।
If you have any query, you can unmute and ask me right now, or maybe you can type in the chat. Good evening, Pinakin ji. Good evening, sir. I wanted to ask, not regarding today's this one, but it is regarding the PEMF. Yeah, it is called pulse electromagnetic. Frequency therapy. Have you done it? Yeah, I have done that in 2022 or Oh, how long? 23. How long? What I had done was, मैंने ना एक न्यूरोथेरेपिस्ट आती थी मेरे घर पे, लेडी आती थी, उनके पास वो मशीन था. आई थिंक मैंने 2-2.5 महीने उनके पास कंटिन्यू करवाया. Around she was charging 600 rupees per session. But is it any help? What do you think personally? So, as per the treatment of PMF, it is a new and advanced technology for treatment. It works on the concept of magnetic therapy. हमारा जो अर्थ है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक कोर होता है. हमारे बॉडी में वो पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं ये मशीन से, और हमें हल्का सा बेनिफिट हो सकता है. बेसिकली जब मैं ये थेरेपी ले रहा था, तभी थोड़ा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो गया था. मेरे को पर्सनली मुझे कोई फायदा नहीं था, और हमारे ग्रुप, मेरे घर के आसपास एक और नवजीवन सोसाइटी में एक भाई साहब रहते थे, उनको उससे फायदा था. बाद में गौरव है, माटुंगा में गौरव रहते थे हिंदुजा हॉस्पिटल के पास, उनको भी फायदा था. लेकिन मुझे इतना ज्यादा फायदा नहीं लगा vis-a-vis द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. तो मैंने डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि उसके बाद मुझे अगेन मुझे न्यूरोथेरेपी करवाना था. आपको पता होगा मैंने न्यूरोथेरेपी का लाइव 1-2 बार सेशन भी रखा था. मेरे हिसाब से न्यूरोथेरेपी वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी अदर देन PEMF. Okay, sir. Thank you for your guidance. मेरा ये सुझाव है, आपको मशीन खरीदना नहीं चाहिए. Either nobody has it, you know. If I want to use it, I have to buy it. Maybe there is a group of ये जो PMF डिवाइस जो बेचते हैं ना, उनका ग्रुप है. आपका एड्रेस डाल के मैं उनको पूछ सकता हूँ आपके आसपास कोई डॉक्टर ने खरीदा है कि नहीं, ना मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ. अगर खरीदा है तो मे बी यू कैन ट्राई इट वंस और ट्वाइस. अगर आपको फायदा हो रहा है देन यू कैन बाय इट. Oh, that would be great. Thank you. Sure, sir. Make sure that you remind me tomorrow about the PMF. Okay. ये थेरेपी का नाम है PEMF, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिवाइस. सौम्या मैम, आपका जवाब मिल गया आपको?
जी सर, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद आपको। मिल गया सर, थैंक यू। हाँ, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। आपकी तो आवाज भी अच्छी है। जी सर, थैंक यू। सुबोध जी, आप अनम्यूट करेंगे सुबोध जी? क्या और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आगे आप सबको बता दूं, मेरा ये पैशन है टेक्नोलॉजी को यूज करना। मैंने आप सबको बताया कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सुबोध जी। हम बाद में बात करेंगे, मे बी आप डिस्कनेक्ट हो। मैं ना थैंक यू। अनिल जी के यहाँ से बात कर रहा हूँ, अनिल जैन के यहाँ से। हाँ पिताजी बोलिए। पूछ रहे थे कि गले में बहुत ठसका लग रहा है खाते हो क्या, कभी कुछ करते हो तो क्या कर सकते हैं। वो पिछली बार डॉक्टर को भी पूछा था जब थ्रोट का हुआ था, तो वो बोले थे नंबर कुछ भेजेंगे, बट कुछ आया नहीं था उनका भी, डॉक्टर्स का या कुछ ऐसे थाने के एरिया के आसपास में भी। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज है सोलर थेरेपी करवानी। ओके। क्योंकि उनके गले के मसल डिटीरियोरेट हो रहे हैं। ठीक है। वो क्यों लगता है वो भी मैं बता। वो खाना खाते हैं ना तब, या पानी पीते हैं कुछ भी, वो खाना है ना हल्का सा लंग में विंड पाइप में जाने की ट्राई करना है। हाँ। हाँ, हमारा खाना फूड पाइप में स्टमक में जाना चाहिए थ्रू फूड पाइप। बराबर। ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पिताजी का वेट मॉनिटर करना है रेगुलरली। हाँ हाँ। जैसे मैंने बताया आपको SpO2 लेवल मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन, ऐसे आपको वेट भी मॉनिटर करना है। आप ठीक। सभी को गुड न्यूज बताऊं, अभी मेरा 10-12 किलो वजन भी बढ़ा है लास्ट 3-4 महीने में। तो अभी मैं और भी कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम डूइंग फास्टिंग। मैं अलग अलग चीजें बहुत सारी ट्राई कर रहा हूँ। अनिल जी को पता है मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। ओके, आप सबका बहुत बहुत सुबोध जी, आप आ गए, बोलिए। मैं भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुबोध जी। प्रेम जी, गुड इवनिंग। गुड एक इवनिंग, बोलिए। चीज पूछना था कि अल्टरनेट थेरेपी की एनर्जी। क्या बोल रहे हो, ऑल्टरनेटिव थेरेपी क्या? अभी आ रही क्या? हेलो, हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है पर वो डिस्टॉर्टेड उसमें के आवाज आ रही एनर्जी हीलिंग है जो वो एक वो किसी ने हमारे ग्रुप में है। कि एनर्जी हीलिंग में दो आता है, एक एनर्जी तो हीलिंग के कोई है क्या जिसमें वो एक जस्ट वो हाथ वो इसमें मैं आपको जी। बता दूं, एनर्जी हीलिंग में 2-3 प्रकार के हीलिंग होते हैं। एक तो रेकी होता है, REAIKI, रेकी हीलिंग। हाँ और हाँ जी, दूसरा हाँ होता है जी, प्राणिक दूसरा होता है हाँ प्राणिक हीलिंग। जी, हाँ हाँ हाँ। मैंने मैंने तो दुनिया भर का सब कुछ ट्राई करके रखा है सब। मैंने तो नहीं हम पहला रेकी हीलिंग का पहला फर्स्ट वर्जन का मैंने कोर्स भी किया, कोर्स खत्म भी किया।
और मैं खुद के ऊपर रेकी हीलिंग का पहला वर्जन का कोर्स भी कंप्लीट करके मैं खुद के ऊपर हीलिंग करता रहता हूँ। मेरा पूरा शेड्यूल होता है, मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से ऊपर नीचे करके रेकी हीलिंग खुद के ऊपर करता हूँ। रेकी हीलिंग क्या होता है, हमारे हाथों में से एक इनविजिबल एनर्जी निकलती है जी और वो हमें हीलिंग देने की ट्राई करते हैं। हाँ जी हाँ, तो ये भी अलग अलग प्रकार की हीलिंग मेथड्स है। जब तक हमें इसका बीमारी का कोई मतलब कोई परफेक्ट इलाज न मिले, हमें ये अलग अलग हीलिंग टेक्निक यूज करना होता है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक स्नेहल मैडम भी स्नेहल हाँ, मेरे हिसाब से स्नेहल मैडम भी अभी कुछ हीलिंग ट्राई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग। अब ये अच्छी बात है ना, मैंने तो पहला लेवल किया, आप तीसरे लेवल पे पहुंच गए हैं। बढ़िया बढ़िया, आप है ना वो उसको हीलिंग, आप अपने आप को हीलिंग करते करते रहिए, आपको फायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू स्नेहल मैम। पहले के लिए हमने एक बार वो डॉक्टर बेला का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने जो रिवर्सल जो कैसे डॉक्यूमेंट किया है, उसमें एक रिवर्सल कैसे था जो कि हमने हिली से हमारा रिवर्सल हुआ था। तो फिर उन्होंने वो डॉक्टर बेला से गया था पता करने के लिए उसमें क्या साइंटिफिक बेसिस है, क्योंकि उधर साइंटिफिक बेसिस वो तो कोई चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे। तो एनर्जी हीलर बोला कि देखिए आपको अगर विश्वास है तो हमको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम प्रूफ देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर छोड़ दिया, बोले कि चलो ठीक है, उसका कोई बेसिस मालूम नहीं पड़ रहा है, बट इट वर्क्स। सर मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीफ। हाँ जी हाँ यू जी डोंट इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीफ, आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। और यू हैव ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीफ, जैसे हमारे पास डॉक्टर जवाहर जी है, डॉक्टर मंजुनाथ जी है, देवेंद्र जी है, बिल्कुल वो जो हाँ छोटी बच्ची है लखनऊ वाली, इतने सारे लोग ठीक हुए। और हाँ अभी हाँ डॉक्टर रिचर्ड बेल का नंबर 62 पे पहुंच गया। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि अभी तक 62 अच्छा रिवर्सल कंफर्म हो। अच्छा पहले हाँ तो बढ़ता जा पहले बॉडी पहले 45 थे, 2020 के आसपास 45 थे। हाँ जी और और डॉक्टर रिचर्ड बेलेक और उसका टीम है ना, साइंटिफिक बेसिस पे करता है। मतलब आप एक बात समझ लो सर, अगर वो ये एनर्जी लिंक में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये मतलब उसके अलावा मेरे हिसाब से 100 से 200 150 और भी रिवर्सल होंगे, इन्होंने अलग तरीके से अपना ही नहीं किया। यस तो इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीफ। हाँ जी हाँ जी अब आप देखो ना सर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा, अभी अभी till date I have completed 8 years with MND ALS. It is not easy.
आपको मैं बता दूं, इट इज नॉट इजी, बट हमें इसको इजी बनाना होगा। थैंक यू सुमन सर फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू सर, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, थैंक यू ऑल। ऐसे ही आप सब हंसते खेलते और गुनगुनाते रहिए, हम वापस मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, और we'll come back. I am going to come back with a new ideas. और मैं अभी ग्रुप में भी वोटिंग वाला डालने वाला हूँ बोल, आप मुझे सुझाव दीजिए हमें किस बारे में मीटिंग करना चाहिए। धन्यवाद आप सब, अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू।